Radhe Radhe, welcome back to my YouTube channel. This is Apeksha Singh trying to be Arjuna Krishna. Okay, so today we are going to continue our previous class of indifference topic. If you remember, मैंने आपको indifference curve बता दिया था. मैंने क्या क्या बता दिया आपको? Indifference curve, I see I'm writing here. Okay. So I've already explained you what is an indifference curve. मैं आपको बता चुकी हूँ. ठीक है? Then I've explained you. Oh, it's not working. Yes, it's working. Okay. So basically, I have already explained what is an indifference curve. I have explained what is MRS. मैं बता चुकी हूँ. What is इसकी मैं दो प्रॉपर्टीज आपको बता चुकी हूँ इंडिफरेंस कर्व की. एक मैंने आपको कॉन्वेक्स शेप बताया और एक मैंने डाउनवर्ड स्लोपिंग बताई. ठीक है. और अलग से मैं प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस का टॉपिक पढ़ाऊंगी तो मैं इसको बता दूँ. ठीक है. आई विल एक्सप्लेन थिंग्स अदर. So basically, what is an indifference curve? ऐसे याद आया? मैं छोटा सा बस quick recap दे रही हूँ. What is an indifference curve? Indifference curve is a graphical representation of the various alternative combination of bundle of two goods among which the consumer is indifferent, or all these combination it gives the same level of satisfaction to the consumer को देता हूँ. Understand? So basically, when we represent these things on a graph, we get to know about these things. Basically, unit P, point P1, when we are taking one apple and 15 banana, we are getting the same level of satisfaction. When we are consuming 2 apples, 10 banana, we are getting the same level of satisfaction. All these combination P, Q, R, S, T, we are getting the equal amount or same amount of satisfaction. Understand these things? ठीक है. So this is what we understand. Now, there's one more point we get it here. ठीक है. So yes, later on we'll get to know about. हमें बाद में हम ये देखना पड़ेगा out of all these combination, इन सारे combinations में से कंज्यूमर कौन सा कॉम्बिनेशन लेगा, जिसमें कंज्यूमर कौन सा वाला कॉम्बिनेशन लेगा. कंज्यूमर जो है he will going to ring a rational consumer, he will going to consume only that combination which gives a maximum level of satisfaction. वही तो कॉम्बिनेशन लेगा जहां पे उसे मैक्सिमम सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिले, वही कॉम्बिनेशन लेगा ना. तो वो हम बाद में पढ़ेंगे. द बेसिस ऑफ बजट लाइन और प्राइस ऑफ कमोडिटीज के ऊपर वो डिपेंड करता है. लेटर ऑन वी विल टॉक अबाउट इट. ठीक है. तो ये बताया. उसके बाद में बताया इट इज व्हेन वी रिप्रेजेंट दिस थिंग ऑन अ ग्राफ वी गेट टू नो दिस इज इंडिफरेंस कर्व इज एक्चुअली अ कॉन्वेक्स शेप. इंडिफरेंस कर्व जो है वो एक्चुअली एक कॉन्वेक्स शेप का है. कॉन्वेक्स शेप का मतलब क्या है? बिकॉज कॉन्वेक्स शेप का क्यों है? बिकॉज एमआरएस इज डिमिनिशिंग. एमआरएस क्या होता है? व्हाट इज एमआरएस? It refers to a range at which the two commodities can be, if you see 15, it can be substituted with each other, right? Which means number of units of banana he is willing to sacrifice for and one additional unit of apple. याद आया? So basically refers to a rate at which the commodities can be substituted with each other so that the total satisfaction of the consumers remains the same रहे. इसलिए why MRS diminishes? MRS कम क्यों हो रही है? 5 sacrifice करे, now 4 banana, now only 2 banana. Why he is sacrificing now lesser and lesser units of bananas for one additional unit of apple? Because of the law of diminishing marginal utility. Law of TMU क्या कहता है? As he consumes more and more units of commodities, marginal utility derived from it keeps on declining, which means as he consumes more and more unit of apple, the marginal utility derived from consuming the apple, it keeps on declining. So it will come keeps on declining. So now as a result, consumer is willing to sacrifice lesser and lesser units of banana for one additional apple. That is why it is MRS diminishes. I hope you understand. ये सब मैं आपको मैंने quick recap दिया था. ठीक है. सो याद रखना रैशनल कंज्यूमर, एक चीज हमेशा याद रखना, कंज्यूमर हमेशा वही कॉम्बिनेशन को प्रेफर करता है जहां पे उसे सबसे ज्यादा यूटिलिटी मिले, सेटिस्फैक्शन मिले, सबसे ज्यादा उसे सेटिस्फैक्शन मिले. अब एक टर्म आया है यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, दैट इज व्हाट इज द मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस. मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस क्या होता है? प्रेफरेंसेस तो आपको पता है. मोनोटोनिक मतलब यहाँ पे क्या हुआ? हमेशा से बोलते ना मोनोटोनसली ये चीज होती चली आ रही है. एक बहुत ही दिस इज अ यूजुअल कॉन्सेप्ट. ये चला आ रहा है मोनोटोनिकली. तो मोनोटोनिक एक तरीका है. ठीक है. तो फॉर एग्जाम्पल इफ यू से दिस थिंग, जैसे स्कूल की ड्रेस जो है, इट्स मोनोटोनिक. स्कूल की ड्रेस हमेशा से चली आ रही है. इट्स मोनोटोनिक जो चला आ रहा है. तो मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस बाय द कंज्यूमर क्या होगा? मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस बाय द कंज्यूमर वही मतलब हमेशा से कंज्यूमर क्या प्रेफर करता हुआ आ रहा है? वो हमेशा वो प्रेफर करेगा जहां पे उसे सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा. सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन यूटिलिटी से कहाँ मिलेगी? जहां पे सबसे ज्यादा लार्जर बंडल ऑफ गुड्स होंगे, जहां पे सबसे ज्यादा यूनिट्स होंगी. कैन आई से दैट? सो मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस रेफर्स टू व्हेन अ रैशनल कंज्यूमर, अंडरस्टैंड, बहुत ही बेसिक है. रैशनल कंज्यूमर्स ऑलवेज प्रेफर मोर ऑफ अ कमोडिटी.
ऑलवेज प्रेफर मोर ऑफ अ कमोडिटी, ज्यादा वाली कमोडिटी को प्रेफर करेगा बिकॉज एज इट ऑफर्स हिम द हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। ठीक है, सिंपल। यही तो मोनोटोनिक का रैशनल कंज्यूमर का प्रेफरेंस क्या है? मोनोटोनिक प्रेफरेंस refers to irrational consumers always prefer more of a commodity because as it offers them the higher level of satisfaction। यही तो उसका एक प्रेफरेंस क्या होगा? उस कमोडिटी को प्रेफर करेगा जिसमें सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन होगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कैन आई से दैट, मैं बोल सकती हूँ कैन आई से दिस थिंग, तो एज कंजप्शन इंक्रीजेस total utility also increases. So if I talk about in the combination of apples and banana, if I talk about in this case, a consumer's preferences will always be between the two bundle of goods। consumers का preferences हमेशा two bundle of goods में होगा। Consumer's preferences will always be between any two bundle of goods in which he prefers only that combination, in which he prefers only that combinations in which at least one of the good, in which at least one combination has at least more of one good and no less of the other। इसमें से एक कॉम्बिनेशन जो है, एक बंडल जो है, उसमें एक गुड का यूनिट तो एक्चुअली ज्यादा हो, एक यूनिट की तो एक गुड की यूनिट तो एटलीस्ट ज्यादा हो। जैसे कि मैं एग्जांपल की तो एक्सप्लेन करती हूँ इसे, ऐसे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। लिसन इट, जैसे कि अब यहाँ पे मैं दो एग्जांपल दे रही हूँ। पहला एग्जांपल है, लिसन इट वेरी केयरफुली, आई एम गिविंग एग्जांपल ऑफ मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस। फॉर एग्जांपल व्हेन यू हैव अ यूनिट ऑफ, आपके पास 10 यूनिट ऑफ एप्पल आप कंज्यूम कर रहे हो एंड 10 यूनिट ऑफ बनाना आप कंज्यूम कर रहे हो, पहला। ठीक है, सेकेंड, इफ यू हैव, अगर आप 7 यूनिट ऑफ एप्पल कंज्यूम कर रहे हो और 7 यूनिट ऑफ बनाना कंज्यूम कर रहे हो, एक रैशनल कंज्यूमर कौन सा वाला कॉम्बिनेशन प्रेफर करेगा? ये वाला कि ये वाला? हाँ, कौन सा प्रेफर करेगा? ये करेगा कि ये करेगा? रैशनल कंज्यूमर, समझदार कंज्यूमर क्या लेगा? 10 यूनिट ऑफ एप्पल और 10 यूनिट ऑफ बनाना मिल रहा है, दूसरे में 7 यूनिट ऑफ एप्पल एंड 7 यूनिट ऑफ बनाना मिल रहा है। ठीक है, बनाना मिल रहा है। आप बताइए मुझे, इसमें से कंज्यूमर, एक समझदार कंज्यूमर, आप क्या करोगे? टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, आप कौन सा वाला प्रेफर करोगे? ये करोगे कि ये प्रेफर करोगे? ठीक है, इसका जवाब मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में आप मेंशन करें। आप मुझे बताइए कि कौन सा वाला आप प्रेफर करेंगे, आप कितने समझदार कंज्यूमर हैं। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन मैं आपको दे रही हूँ। ठीक है, सेकंड ऑप्शन मैं आपको दे रही हूँ। मान लीजिए पहले में आपको, इफ यू आर गेटिंग दिस 10 एप्पल आपको मिल रहे हैं इसमें, और दूसरे में आपको you getting this, you are getting a 10 बनाना मिल रहा है। ठीक है, इसमें भी, और इस बंडल में आपको 7 यूनिट ऑफ एप्पल मिल रहा है लेकिन 10 यूनिट ऑफ बनाना मिल रहा है। कौन सा वाला एक समझदार कंज्यूमर कौन सा प्रेफर करेगा? प्लीज आंसर मी दिस इन अ कमेंट सेक्शन। और अगर आपने ये बता दिया कि आप सही वाला बता दिया, कौन सा बंडल आप प्रेफर करेंगे? एक मैं बता दे रही हूँ, दूसरा वाला आप खुद बताएंगे। ठीक है, एक मैं आपको बता रही हूँ, दूसरा आप खुद बताएंगे। एक मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस, ऐसा सेट कि एक समझदार मोनोटोनिक हमेशा से क्या प्रेफर करेगा? जिसमें ज्यादा बंडल, जिसमें ऐसे मोर ऑफ अ कमोडिटी, हमेशा वही प्रेफर करेगा। तो रिमेंबर दिस थिंग, मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस विल ऑलवेज बी बिटवीन दी बंडल ऑफ गुड। हमेशा प्रेफरेंसेस तो दो चीजों के बीच में होगी ना, एक के बीच में कैसे प्रेफरेंस हो जाएगी? याद रखना, मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस विल ऑलवेज बी बिटवीन टू बंडल ऑफ गुड ना, कि कौन सा वाला ज्यादा प्रेफरेबल किया जाएगा। जाहिर सी बात है, इसमें ज्यादा लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन होगा। याद रखना, मोर ऑफ अ कमोडिटी। अगर आप इसमें देखिए, ये वाला मैं बता दे रही हूँ, ये वाला बताएंगे मुझे। ठीक है, और आई एक्सप्लेन, अगर नहीं है तो समझ आए तो मैं नेक्स्ट क्लास में इसको एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, कि अगर नहीं आपने मुझे बताया तो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। 10A है, 10B है, 7A 7B। तो यहाँ पे पहले इसमें 10 एप्पल इससे मिल रहा है और 10 बनाना मिल रहा है। इसमें एप्पल की यूनिट भी 10 मिल रही है, बनाना की यूनिट भी इससे 10 मिल रही है। दूसरा बंडल जो मैंने देखा उसमें 7 यूनिट मुझे एप्पल की मिल रही है, 7 यूनिट मुझे बनाना की मिल रही है। तो एक मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस रैशनल कंज्यूमर की क्या होगी? ये वाली की होगी ना। बोलेगा मुझे इसमें ज्यादा मिल रहा है, मैं तो ये लूंगा। एग्जैक्टली। सो consumer preferences of 10 unit of apple and 10 unit of banana over this bundle, 7 unit of apple, 7 unit of banana will shows that consumers monotonic preference, consumers की वो monotonic preference दिखाएंगे। ये वाला आप मुझे कमेंट सेक्शन में एक्सप्लेन मुझे बताएंगे। ठीक है, कंज्यूमर कौन सा प्रेफर करेगा। तो बेसिकली नेक्स्ट टॉपिक वी विल हैव इज मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे, सो बेसिकली नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू हैव व्हाट इज एन इंडिफरेंस मैप। ठीक है, इंडिफरेंस मैप क्या होता है? याद रखना, मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस, इंडिफरेंस मैप, ऑल ऑफ दीस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिफरेंस मैप क्या होगा?
अगर आप देखे थे इसमें क्या था, सिर्फ इस इंडिफरेंस कर्व में सिर्फ एक ही इंडिफरेंस कर्व है। इंडिफरेंस मैप में क्या होगा, फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व, ये है IC1, ये है IC2, ये है IC3, ठीक है। तो बेसिकली मतलब दे कैन बी अ इनफिनाइट नंबर ऑफ इंडिफरेंस कर्व, कितने भी बन सकते हैं, ठीक है। सो इंडिफरेंस मैप क्या है, इंडिफरेंस मैप इज अ फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स, family of indifference curve that represents the consumer's preferences over all the bundle of goods, जहां पे of course indifference, क्योंकि जो पता है क्या what is going to happen, आप पढ़ोगे जब हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, जब हम पढ़ेंगे कैसे हम कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन इक्विलिब्रियम लेवल पर पहुंचते हैं, तो वहां पे तो बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व को देखेगा कि मुझे इस सब में से कौन कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस बताई ना मैंने, तो मुझे देखेगा कि मुझे कौन से वाले इंडिफरेंस कर्व के कॉम्बिनेशन से सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। जब मैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आपको पढ़ाऊंगी ना, जब मैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे मैं इंडिफरेंस कर्व के थ्रू में पहुंचाऊंगी, दैट विल बी द नेक्स्ट क्लास, वो नेक्स्ट क्लास में होगा, ठीक है। जब मैं आपको बताऊंगी कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, उस समय में ये चीज उस समय कंज्यूमर हमेशा, एक समझदार कंज्यूमर क्या करेगा, वो देखेगा कौन से इंडिफरेंस कर्व के कॉम्बिनेशंस में मुझे सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, दैट इज व्हाट ही सी। सो बेसिकली रेफर्स टू द फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स दैट represents the consumer's preferences over all the bundle of two goods. If you see these things, और एक चीज और आपको याद रखनी है कि हायर देखो IC, अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे जरा ध्यान से देखो इंडिफरेंस कर्व में, पहला इंडिफरेंस कर्व जो है IC1 का जो है, इसमें जो क्या है, इससे कमोडिटी एक्स ये लिखा है मैंने, IC1 का मैं यहाँ लिख रही हूँ, ठीक है। IC1 में कमोडिटी एक्स में जो है अगर आप देखिए तो कितना उससे मिल रहा है, कमोडिटी एक्स में इसे OR मिल रहा है, ठीक है। कमोडिटी वाई में इससे कितना मिल रहा है, ओपी मिल रहा है, ठीक है, इन कॉम्बिनेशन IC कॉम्बिनेशन में, ठीक है। अगर आप देखेंगे वहीं पे अगर आप IC2 में देखेंगे इन कॉम्बिनेशन, दिस इज फॉर कॉम्बिनेशन ए के लिए है, ठीक है। बी के लिए अगर आप देखेंगे इसमें इसे कमोडिटी कितना मिल रहा है, एक्स का OS मिल रहा है, कितना मिल रहा है, OS मिल रहा है, और वाई के लिए कितना मिल रहा है, ओपी मिल रहा है इन कॉम्बिनेशन बी। सो किस कॉम्बिनेशन में, किस वाले इंडिफरेंस कर्व में उसे सेटिस्फैक्शन ज्यादा मिल रहा है, इसमें तो सेम मिल रहा है, ओपी कमोडिटी वाई तो सेम मिल रहा है, ठीक है। लेकिन दूसरे इसमें देखिए कमोडिटी एक्स जो है, डोंट यू यहाँ पे दिख रहा है ना, OS इज ग्रेटर देन OR, ये जो OS है ये OR से ज्यादा है ना, कमोडिटी एक्स ज्यादा मिल रहा है। सो कैन आई से दैट इंडिफरेंस कर्व, द सेटिस्फैक्शन डिराइव फ्रॉम दी indifference curve combination B से, B has a more satisfaction than combination A, B के पास ज्यादा satisfaction है A से, तो एक कंज्यूमर, एक रैशनल कंज्यूमर A प्रेफर करेगा कि B प्रेफर करेगा, B वाला प्रेफर करेगा ना, बिकॉज ही इज गेटिंग द मोर सेटिस्फैक्शन ऑफ कमोडिटी एक्स ऑफ OS, उसे ज्यादा मिल रहा है, B का ज्यादा मिल रहा है। सो कैन आई से दैट, क्या मैं ये बोल सकती हूँ इसमें कि हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट्स द हायर लेवल ऑफ satisfaction. Listen it very carefully, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि अब मैं इंडिफरेंस कर्व की एक और प्रॉपर्टी बताने जा रही हूँ, वो प्रॉपर्टी क्या है, दैट इज हायर इंडिफरेंस कर्व, IC लिख रही हूं मैं, ठीक है। हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट्स द हायर लेवल ऑफ satisfaction, ठीक है। क्या बताया मैंने कि हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट्स द हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। वहीं पर अगर आप इंडिफरेंस कर्व 3 पे थर्ड वाले पे चले जाएंगे, यहाँ पे अगर मैं इस पॉइंट को मान लो यहाँ कर लेती हूँ, तो डोंट यू थिंक मुझे ये वाली कमोडिटी का एक्स का ज्यादा मिलेगा इंडिफरेंस कर्व में, तो why इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट्स द हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, बिकॉज इट हैज more commodities, more units of commodities, more unit of commodities हैं, more unit of commodity मतलब more utility, units of commodity मतलब ज्यादा यूनिट्स है ना, वही बोल रही हूँ कि क्योंकि कमोडिटी एक्स क्या है, ज्यादा यूनिट है, ज्यादा यूनिट मतलब ज्यादा यूटिलिटी किस लिए, मतलब मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस, बहुत ही आसान है, मतलब मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस, दिस इज व्हाट वी कॉल इट। सो इंडिफरेंस कर्व इजी, लिसन इट, अभी मैं इसको एक पूरा कंबाइंड तरीके से बोल रही हूँ, लिसन इट वेरी केयरफुली, देन वी आर कमिंग टू दिस इंडिफरेंस नाउ, उसके बाद में सीधे प्रॉपर्टी ऑफ इंडिफरेंस का बताऊंगी, जिसमें मैं ऑलरेडी 3 बता चुकी हूँ एंड एक लास्ट बचेगी, देन वी आर कमिंग टू एंड ऑफ दिस क्लास। तो क्या बोला इंडिफरेंस मैप में, इफ यू सी इंडिफरेंस मैप इज अ फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व,
इंडिफरेंस मैप एक फैमिली है इंडिफरेंस कर्व की, यहाँ पे दैट रिप्रेजेंट्स द कंज्यूमर्स प्रेफरेंसेस ओवर ऑल दीज बंडल ऑफ गुड्स। इफ यू सी द तो इसकी मैंने क्या सीखी, हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट्स द हायर लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन बिकॉज व्हेन वी सी द कॉम्बिनेशन, व्हेन वी कंपेयर द कॉम्बिनेशन ए विद बी, सो इन दिस केस वी हैव सीन कि कॉम्बिनेशन बी हैज द मोर कमोडिटी एक्स देन द कमोडिटी then the combination A, that is only OR। जब मैंने कंपेयर किया यहाँ पे तो मैंने देखा OS is greater than the OR, which means B has a higher satisfaction as compared to the A। B के पास ज्यादा satisfaction है A के combination में। So then I come to this conclusion that higher indifference curve represents a higher level of satisfaction। क्यों? Because it has a more units of a commodity। more units मतलब more utility। more utility मुझे कैसे पता चलेगा? Because of the monotonic preferences। So this is how we come to the end of this indifference map। अब मैं बात करूंगी family the next topic, that is what is the properties of indifference curve। Now we are coming to the next topic, that is the properties of indifference curve। What is the properties of indifference curve? indifference curve की property क्या होती है? ये तीन तो मैं जब साथ साथ पढ़ाती जा रही थी तभी बताती आ रही थी, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा रिविजन करके बता देती हूँ। First we have indifference curve is always, I said indifference curve is always convex to the origin। हमेशा कॉन्वेक्स होता है। कॉन्वेक्स क्यों होता है? कॉन्वेक्स इसलिए होता है बिकॉज ऑफ अ डिमिनिशिंग। कॉन्वेक्स क्यों होता है? बिकॉज एमआरएस डिमिनिश, बिकॉज एमआरएस क्या करता है? एमआरएस इज एक्चुअली डिमिनिशिंग। 15 से 10 हो रहा है। देखो सैक्रिफाइस, एमआरएस क्या था? यूनिट्स व्हिच हैव बीन, बताया था ना, नंबर ऑफ यूनिट्स हु इज विलिंग टू सैक्रिफाइस टू गेन वन एडिशनल यूनिट, दैट इज व्हाट इट इज। तो बेसिकली क्या हो रहा है? कम से कम सैक्रिफाइस ये कर रहा है ना। So basically I said MRS diminishes कर रहा था, number of units he is willing to sacrifice, कम sacrifice कर रहा था ना for one additional unit। So basically MRS diminishes क्यों कर रहा था? Because of law of DMU। Those who haven't watched my class, जिनको नहीं समझ आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ, प्रॉपर्टीज क्या है, कैसा है, प्लीज गो एंड वॉच माई प्रीवियस क्लास। मैंने बताया हुआ है कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन क्यों है MRS। ये जो इंडिफरेंस कर्व है, it is convex to the origin because of a diminishing MRS, and MRS is refers to the rate at which the commodities can be substituted with each other। याद आया? बताया था ना। So basically 5 units is being sacrificed to get one additional units। यहाँ पे 4 unit, यहाँ 5 sacrifice हो रहा है, यहाँ 4 sacrifice हो रहा है, यहाँ पे 3। क्यों? ये कम से कम sacrifice होता चला जा रहा है एक additional apple के लिए। ठीक है, तो बेसिकली अगर आप देखें यहाँ पे कम होता चला जा रहा है, 5 है, 4 है, 3 है। क्यों कम हो रहा है? क्योंकि लॉ ऑफ डीएमयू लग रहा है। लॉ ऑफ डीएमयू क्योंकि जैसे ही वो एक एडिशनल एप्पल कंज्यूम कर रहा है तो जो मार्जिनल यूटिलिटी है derived from consuming one additional apple is actually declining, वो कम होती चली जा रही है। So इसलिए now he has to give up lesser and lesser unit of bananas for each additional apple। तो इसलिए उसे कम बनाना सैक्रिफाइस करना पड़ा है एक एडिशनल एप्पल के लिए। अंडरस्टैंड? दिस इज व्हाई इट इज एक्चुअली कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन। मैंने पहले भी बताया था। फॉर डिटेल प्लीज गो एंड वॉच माई प्रीवियस वीडियोस। सेकेंड आई सेड इट इज एक्चुअली डाउनवर्ड स्लोपिंग। मैंने पीपीएफ के लिए भी बताया था कि पीपीएफ जो है वो भी मेरा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। पीपीएफ जिन्हें नहीं पता है प्लीज गो एंड वॉच। वापस से नहीं बताऊंगी, वापस रिपीट कर चुकी हूँ, पिछले क्लास में ही वापस रिपीट कर चुकी हूँ। पीपीएफ डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है बिकॉज ज्यादा प्रोडक्शन के साथ है। इन ऑर्डर टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ वन यूनिट ही हैज टू रिड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ द अनदर यूनिट। इन द सेम वे यहाँ पे आईसी कर्व इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। सो इन ऑर्डर टू कंज्यूम मोर ऑफ द वन गुड, इन ऑर्डर टू कंज्यूम मोर ऑफ द वन गुड ही हैज टू रिड्यूस द कंजप्शन ऑफ द अदर गुड्स। सो यहाँ पे क्या करना पड़ रहा था? एक एप्पल ज्यादा खाने के लिए इसे बनाना का कंजप्शन कम करना पड़ रहा है। दैट इज व्हाई इट इज एक्चुअली डाउनवर्ड स्लोपिंग। इसलिए डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। अभी बताया हायर इंडिफरेंस कर्व जो ये वाला तो मैंने अभी बताया है। ठीक है, तो हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट्स हायर लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन। बताया ना कि हायर इंडिफरेंस कर्व जो है रिप्रेजेंट्स हायर लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन बिकॉज it represents a more unit of a commodity, which means more utility because of the monotonic preferences। Last में बता रही हूँ that is indifference curve can never intersect with each other। indifference curve जो है वो कभी भी intersect नहीं करेंगे, ये कभी intersect नहीं करेगा। क्यों intersect नहीं करेगा? because two indifference curve can never show the same level of satisfaction। अभी बताया ना higher indifference curve जो है ये हायर वाला जो है IC2 है ये ज्यादा शो करता है सैटिस्फैक्शन, ये वाला कम शो करता है। तो दो इंडिफरेंस कर्व कभी एक दूसरे से इंटरैक्ट करेंगे ही नहीं। क्यों इंटरैक्ट नहीं करेंगे? सी इफ यू सी द कॉम्बिनेशन, लेट्स टॉक अबाउट द कॉम्बिनेशन इंडिफरेंस कर्व IC1 की बात करती हूँ। IC1 के अगर आप पॉइंट देखें यहाँ पे IC1 जो है इसका पॉइंट क्या है? A और B है, which means combination A is giving the A and combination A और B is giving the same level of satisfaction। सेम satisfaction आपको दे रहे हैं
वहीं पे मैं IC2 की मैं बात कर रही हूँ. So which mean A and C is also giving me same level of satisfaction. So when if you see, इसका मतलब क्या हुआ? B and C should also give the same level of satisfaction. B और C को भी same level of satisfaction देना चाहिए. When B and C are lie on a two indifference curve, how it is being possible? ये तो impossible है. ऐसा हो ही नहीं सकता. You have two combination which are lying on two indifference curve. One is higher and one is lower, and they are showing the same level of satisfaction. No, it is not possible. So this is why two indifference curve can never intersect with each other. दो combination है B and C, दो अलग अलग indifference curve पर lie करे, एक higher पे एक lower पे, तो वो एक जैसा same satisfaction, same amount of satisfaction कैसे दे सकते हैं? वो नहीं देंगे. इसलिए indifference curve, two indifference curve can never intersect with each other. It always passes through one single point. So basically, because two indifference curve, two combination can never show the same level of satisfaction to the constitutive points on two indifference curve. Understand? हर indifference curve अपना एक अलग अलग individually अलग level का satisfaction देगा. So this is how we are coming to the end of this class. Next topic जो हमारा रहेगा वो budget line and how we are going to reach to the consumer equilibrium पर हम कैसे पहुंचेंगे वो हम पढ़ेंगे. ठीक है? So please like my channel, subscribe करें, press the bell icon, फीडबैक दीजिए, कमेंट कीजिए, जो भी क्वेश्चन, जो भी चीज है प्लीज कुछ इंप्रूव मैं कर सकती हूँ उसके बारे में बताइए. व्हाट इज द टॉपिक दैट यू वांट मी टू डिस्कस, मैं किस बारे में बात कर सकती हूँ. प्लीज मुझे टॉपिक बताइए एंड प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एज मच एज पॉसिबल. सब्सक्राइब करिए. आप सब्सक्राइब नहीं करें, मेरा चैनल व्यू करते हैं बट आप सब्सक्राइब नहीं करते. प्लीज डू इट. कोई भी क्वेरी हो मुझे इंस्टाग्राम पर आप DM कर सकते हैं, कॉमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं. आई विल लिसन इट, आई विल एड्रेस इट. Thank you so much. Keep liking it. Radhe Radhe.